सबसे पहले तो वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। Thank you so much. Thank you. Thank you for having me. फैमन फैमन क्या कहना चाहोगे, कैसा समय आपका बीत रहा है अभी फिलहाल जब से शो ऑफ एयर गया है, किस तरह से समय बीत रहा है आपका? यार ऑनेस्टली बताऊं तो मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ टाइम अलोन टू माई सेल्फ। बेसिकली एक साल हो गया था जहाँ पे मैं अपने आप अपनी बॉडी पे ठीक से काम कर किए हुए। इज दिस अ वेरी हिंदी ओरिएंटेड इंटरव्यू और कैन आई स्पीक इन इंग्लिश टू? इंग्लिश हिंदी बोथ। इंग्लिश इज फाइन, राइट? ओके। इंग्लिश। हाँ, यस। तो बेसिकली I've had a I've had a long run in the year. It's been a long 1 year. Been really tiring and exhausting, and we've been working really hard continuously throughout the year. So this is a good break. This is a good break after finishing the show. I'm waking up early, going for a run, working out. I'm coming back, making myself breakfast, making myself lunch, and this is my time with my cats, my house, and I think it's been lacking for a year now. एंड आई एम रियली एंजॉयिंग दिस टाइम नाउ। तो मैंने अपने मैनेजर को भी बोल रखा है कि एक हफ्ते तक मुझे छोड़ दो। मैं कोई ऑडिशन, कोई काम के लिए कोई भी कुछ भी नहीं करना चाहता एक हफ्ते के लिए। आई थिंक आई विल स्टार्ट डूइंग दैट आफ्टर अ वीक। सो या, दिस इज द टाइम आई एम गोना हैव टू माय सेल्फ। एंड हाउ अबाउट फैमिली? आप फैमिली से भी मिलना चाहते थे क्योंकि सच अ लॉन्ग टाइम आप लोग राइट। अलग रहते हो, लाइक फैमिली बैंगलोर रहती है, आप यहाँ रहते हो, तो कैसे मतलब उनके साथ कब मिलना हुआ? उनके पास जाना जाने का प्लान है। आई थिंक नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट गेटिंग इनटू समथिंग, सम न्यू प्रोजेक्ट, whenever possible I start auditioning and look टेस्ट जो भी है वगैरह जो करने लगूंगा। उसके बाद शायद जब मुझे टाइम मिलेगा in between the time that I've been finalized and I have to start the shoot, I think that's the time I'll go. Plus अभी क्या होता है ना, बैंगलोर में अगर चला जाऊं तो वहां पे दावतें बहुत होने वाली है। People are going to invite me a lot, and mom and dad are going to want me to eat a lot at home. And right now, I'm not in the space of doing that because I need to catch on to something new. And while I'm doing that, I have to be very conscious about how I look and how my diet goes, how my workout goes, and that all that will go for a toss once I reach Bangalore. So I'm going to I give myself that much amount of buffer time so I can stay a little more fit once I come back from there. So I'm working on that right now. I'll go to Bangalore, I think by the end of this month, mostly. अच्छा, एंड टॉकिंग अबाउट शो, क्या कहना चाहोगे? लाइक काफी लंबे समय से न्यूज़ेस आ रही थी कि शो ऑफ एयर जाने वाला है, लेकिन ये ऑल ऑफ अ सडन जिस तरीके से ब्रोक हुआ आप लोगों के सामने दिस न्यूज़, सो कैसे, मतलब क्या अब रिएक्शन था? सच बताऊं तो देखिए, जब हम लोग हमारा लास्ट ट्रैक चला रहे थे, बिफोर वी गॉट टू नो द शो इज गोइंग टू एंड, वी हैड अ फीलिंग दैट दिस वाज इनफ, यू नो। एक स्टोरी होती है, एक स्टोरी हम लोग ने शुरू की थी, उस स्टोरी का प्रोग्रेस हुआ, एंड इट हैड कम टू अ पॉइंट वेयर आई थिंक द स्टोरी वाज डन। Prolonging that would have been a little more dragging. If we had to prolong it from then we would have had to bring in stories that were not even there in the first part of the schedule of the story. We started a story, and Apna Time Bhi Aayega is a very story-oriented show. It was not a show based on one character. It was not a show that like, for example, different shows have different names of characters itself. But Apna Time Bhi Aayega ka story tha, baseline tha, ek mudda tha, difference between rich and poor, the elite and the working class. So how the elite how the elite feel that the lower class need to be treated a certain way so that they can maintain that distance and that relationship between them. How that had to change was the main mudda of the story. और जब वो हम लोग कवर करते आ गए थे, तो लास्ट ट्रैक जब चल रहा था शो का, तब मैंने मेघा को भी बोला था, मैंने पुलकित से जब बात की थी उससे भी बोला था, जो विक्रम प्ले करता है मेरा भाई, उससे भी बोला था मैंने कि ये अभी यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए ताकि शो इसके बाद ड्रैगिंग ना लगे। And that's exactly what happened. I wouldn't say it was a shocker, but obviously there are a lot of emotions that are joined to the entire progress of the show and the entire team of the show, the story of the show, and how we've built along 1 year, and we've had a lot of I made a lot of friends, I made a lot of I think we became a family by the end of it.
एंड उनका पीछे छूट जाना इज व्हाट was a little bit of effect that must have happened to us, but the show ended on the right space. It had to end in the right space, and it did end in the right space. लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे फैंस, उनको ऐसा लग रहा है सीजन 2 आना चाहिए और शो एंड नहीं होना चाहिए था। सो क्या कहना चाहोगे इस चीज को लेकर? हाउ यू सी दिस रिस्पॉन्स? देखिए, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग टू सी व्हाट लव दीज फैंस आर गिविंग। बहुत अच्छा लगता है कि आप एक ऐसा काम करते हो जिसके लिए आपको इतना प्यार मिलता है, इतनी सच्चाई दिखाते हैं लोग कि आप there are no words I can explain how I feel about how these people show us the love. And I think that's the thing you get when you can play a character, you can justify a character well, है ना? तो जब इन लोगों को पता चला, obviously इन लोग दुखी होते ही हैं, पर I've always told this to people, everything has to come to an end. हर चीज का अंत होना बहुत जरूरी है, ताकि वो उसकी इलास्टिसिटी रहे, है ना? अब रबर बैंड को भी आप जितना भी खींच लो, ज्यादा खींच जाओ तो उसकी इलास्टिसिटी जो है वो खत्म हो जाती है, फिर उसका कोई मायने नहीं रहता, it loses its effect. So I think you need to prolong something only to a certain amount, and fans who do feel that the show needs to be extended also understand this, because I personally talk to them, I personally message them, मैं personally connect करता हूँ इन सब से। तो मैं जब भी उन लोग के मैसेज आते हैं इस चीजों ये कहते हुए कि आपको शो बंद नहीं होना चाहिए, हमें बहुत दुख हो रहा है, हम रोने लग गए हैं, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैंने इन चीज को लोग सबको एक ही बात कही है कि देखिए, it's run its course, and I think you all saw what you all saw. You all loved us so much because of the fact that it was the right amount of time. इसके बाद शायद आप छोड़ के भी चले जाते, कहते नहीं ऐसा नहीं होगा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज का अंत होता है, और आई थिंक एवरीथिंग हैज टू फिनिश ग्रेसफुली, एंड आई एम ग्लैड दैट वी डिड दैट वे। एंड फैंस के लिए तो देखो, फहमान तो है ही, मेरे लिए वीर जो कैरेक्टर्स हैं हमारे शो के, मेरा मेरा कैरेक्टर जो वीर प्ले किया मैं बहुत मिस करूंगा, क्योंकि आई यूज्ड टू प्ले वीर मोर देन आई यूज्ड टू बी फहमान इन दिस वन ईयर। तो उसकी यादें रहेंगी, पर आई थिंक इट वाज अ ब्यूटीफुल रन, एंड उनको भी यही कहना चाहूंगा कि दुख वाली कोई बात नहीं है, एक और कैरेक्टर ले आएंगे जिसमें और मजा आएगा, जिससे आपको फिर से प्यार होगा, तो इंशाल्लाह विल डू दैट। एंड व्हाट अबाउट सीजन 2? इफ अगर सीजन 2 आता है, क्योंकि जिस तरीके से फैंस कहीं ना कहीं सीजन 2 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर मेकर सीजन 2 लेकर आएंगे तो आप हिस्सा बनना चाहेंगे इफ शो रानीवीर ऑफर के हुआ? रानीवीर के बच्चे बन के आना है तो आऊंगा। मुझे right now I don't want to play a father, because if the season 2 comes in, you'll have to take a leap, and if you do take a leap, then you'll have to be an old man, and I don't want to play an old man right now, at least in television, because फिर क्या होता है, वो टाइपकास्ट हो जाता है। It's a little risky to do that at this moment in my career, I think, but अगर season 2 आता है तो रानीवीर के बच्चे बन के आ सकते हैं तो आ जाएंगे, but I don't think so, I don't think that's needed, I believe that's not ओके, needed. लास्ट डे जो शूट था आप लोगों का, क्या मेमोरीज रही, कैसा था सेट का माहौल, कुछ बताना चाहेंगे? लास्ट डे में बहुत बहुत सारा काम बचा था शूटिंग वाइज, और बहुत सारा काम बचा था, तो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं था इस चीज को एम्ब्रेस करने के लिए, but since we did get to know about it for a week, we did have our 1 week long celebration, and feelings, and all of these things had to happen. It happened in that entire week. It was not just the last day. Last day पे हम लोग ने केक वेक काटा, और बहुत बहुत खुशी खुशी हम लोग ने इस चीज को खत्म किया, मतलब nobody was emotional. We were all happily emotional, we felt that it was the right thing to do, and we didn't want anybody to feel like we didn't want it to end, or we're feeling that कुछ बचा था, कुछ करना चाहिए था, और I think it was not that feeling. Everybody enjoyed that space. We didn't, हम लोग, एक याद है हमें कि जब आखिरी हफ्ता था हमारा, तब कोई अपने रूम पे वापस नहीं जा रहा था, हम लोग सेट पे ही बैठते थे, वहीं बातें करते थे, वहीं मस्ती करते थे, डायरेक्टर के साथ, हमारे क्रिएटिव्स के साथ, हमारी पूरी टीम के साथ, जो डीओपीज हैं, जो लाइटमैन हैं, जो स्पॉट दादा हैं, सबके साथ हम लोग ने बहुत मस्ती की है, और बहुत खुशी खुशी सब कुछ खत्म किया हम लोग। सो
किसे सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं फिलहाल के लिए? सेट पर जाना फिलहाल मिस कर रहे हैं, शूट करना मिस कर रहे हैं, बॉन्डिंग मिस कर रहे हैं, जो एक होता था वहां पर कहीं ना कहीं? मैं रानी द कैरेक्टर को मिस कर रहा हूँ. हाँ, I'm because that was one character that influenced me a lot. I had a very deep connection with Rani, the character, because she was one character that anybody would just be in awe of. रानी जो कैरेक्टर है उसको मिस करता हूँ मैं सबसे ज्यादा. और जो मैं वीर प्ले कर रहा था, वीर को ज्यादा मिस नहीं करूंगा क्योंकि वीर का प्रोग्रेशन अच्छा रहा है. It started somewhere, it ended, and it was the right progression of it. And I think Veer had to come to an end at that point. It was the right time. But Rani is something I'll always miss. अच्छा, शो का अच्छा खासा लॉन्ग रन रहा है। आपकी कौन सी बेस्ट मेमोरी रही है शो की, जो बहुत ज्यादा मतलब एक हाईलाइट रही हो आपकी लाइफ में? मतलब इतने लंबे समय में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, जी, वेडिंग सीक्वेंस हुए, काफी कुछ हुआ। क्या जी. सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब है, जो सीक्वेंस आपको बहुत पसंद आया हो दो करने में? सीन्स दो सीन्स हैं जो कभी जिंदगी में, दो यानी मैं तो थोड़े और मेंशन कर दूंगा शायद, पर दो सीन्स हैं जो मेरे सबसे दिल के करीब रहेंगे. एक है रानी का लेटर वाला सीन, जिसमें रानी वीर के लिए लेटर लिखती है, थैंक यू. और इंग्लिश में लिखती है वो. तो वीर उसको पढ़ नहीं पाता है, तो ही सेज व्हाई डोंट यू रीड इट फॉर मी. एंड तो रानी को कहता है कि आप पढ़ दीजिए इसको. तो जब रानी पढ़ने लगती है, वो सीन वन ऑफ द बेस्ट सीन्स ऑफ द शो. अगर फैंस जब देखेंगे सुनेंगे तो उनको पता होगा कि क्या किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ मैं. वो एक सीन रहा है. फिर एक और सीन है जो मंदिर में हम लोग की शादी होती है, जबरदस्ती की शादी की जाती है. उससे पहले एक सीन रहता है जहाँ पे पहली बार वीर का एक नेगेटिव साइड दिखता है. जब रानी को लगता है कि वीर ने एक्सीडेंट करवाया है, पर और इल्जाम उनके बाप पे डाला है, जो कि सच नहीं रहता है, पर रानी सा की वजह से ये ऐसा बोलता है कि मैंने ही किया है. तो वो एक सीन है जो प्रोग्रेशन, एक एक अलग साइड ऑफ वीर दिखाया है पहली बार उस सीन में. तो ये दो सीन मेरे दिल के बहुत करीब रहेंगे. बाकी तो बहुत सारे हैं यार. बलिया वाला जो एंटायर ट्रैक था, बलिया में जब हम लोग गए थे, उस वो पूरा ट्रैक याद रहेगा. वो पूरा ट्रैक बहुत मजेदार ट्रैक था. जब शादी हुई थी पहली बार, वो वाला जो सीक्वेंस था, हम लोग दिन रात, क्योंकि आउटडोर था, हम लोग ने 4 दिन के लिए आई थिंक 2-2 घंटे हम लोग ने सोए. वैनिटी में सोते थे हम लोग 2-2 घंटे के लिए, 2-2.5 घंटे के लिए, और फिर उसके बाद उठ के हम लोग काम करते थे. 4-4 5-5 बजे तक हम लोग ने शूट किया है. बहुत मजेदार, बहुत टायरिंग, बहुत एग्जॉस्टिंग रहा है, बट इट वाज द मोस्ट अमेजिंग सीक्वेंस टू शूट, because it was a lot of drama in it. And these are the things I'm going to miss. And also doing scenes with Rani, any scene with Megha itself used to be a very overwhelming thing, because we used to feel the characters so much कि हम लोग सीन खत्म होने के बाद भी उस चीज से निकल नहीं पाते थे. कई बार ऐसे हुआ है कि हम लोग कभी उसका अगर सीन इमोशनल रहा हो या मेरा सीन इमोशनल रहा हो, तो हम लोग सीन खत्म होने के बाद भी हम लोग कभी कभी उस जोन में रह जाते थे. तो एक दूसरे को मनाना पड़ता था कि चल ठीक है, हो गया, खत्म हो गया ये. हम लोग कैरेक्टर्स के बाहर आना अभी इस वक्त बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि यू कांट स्टे इन दैट जोन फॉर टू लॉन्ग. So all of these things are going to be very close to my heart. Just doing scenes, because you don't get that very often. You don't get a good actor to work with. You don't get a person who's feeling every moment for the longest run. And I think that's what happened with Apna Time Bhi Aayega. ओके, वैसे तो आपने बता ही दिया आपकी बॉन्डिंग के बारे में मेघा के साथ, लेकिन कुछ बताना चाहेंगे कैसे मतलब शुरुआत हुई, आप लोग इतना अच्छे से डेवलप हो गए कि एक अच्छी को एक्ट्रेस तो वो आपकी रही, लेकिन इसके साथ साथ आपके अच्छे दोस्त भी बन गए? करेक्ट. तो क्या है ना कि जब जैसे आपको पता है कि रानी केम इन लिटिल, मतलब मेघा केम इन लिटिल लेटर, क्योंकि स्टार्टिंग में अनुष्का सेन थी 15 एपिसोड के लिए. तो जब मेघा सेट पे आई पहले दिन, तो मेघा को शूट करना था 17 सीन्स, 3-4 घंटे के स्पेस में 17 सीन्स के क्लोजेस देने थे उसे, क्योंकि हम लोग ने सारे ड्यूब के साथ शूट कर लिए थे, और इसको सिर्फ क्लोजेस देने थे. मेघा को पकड़ना था एक्सेंट, मेघा को पकड़ना था डायलॉग, मेघा को पकड़ना था कैरेक्टर. बहुत सारी चीजें थी. और सेट पे entire team was on set. The producers, the directors, the creatives, the writers, जो फिर चैनल वाले, ये सब, मतलब हर कोई उसे जाके कुछ बोल रहा था, हर कोई जाके उसको कुछ बोल रहा था. तो मैं जब खड़ा था वहां पे नीचे, मैंने देखता रहा कि ये लड़की
इतने प्रेशर के बीच में she didn't flinch. She had a smile on her face. That was one thing I really liked seeing, because there was a lot of confidence there. It didn't show overconfidence. It showed कि चलो ठीक है, I'll take everything with a smile. And I think after by the evening, once she finished a few scenes and she came lunch के लिए, वो ऊपर आई अपने कमरे में, तो मैं उसको अपने कमरे में बुलाया. मैंने कहा साथ में बैठ के खाना खाते हैं. उस वक्त मैंने बातचीत की. मैंने कहा जो बोले, हर कोई अलग अलग चीजें आगे बोलेगा, कभी दिमाग में इस चीज को प्रेशर मत लेना कि तू कर नहीं पा रही है, क्योंकि इसका कैरेक्टर है जो टाइम लगेगा करने के लिए. हम लोग 2-2.5 महीने हम लोग रिहर्सल करते रहे, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग रीडिंग करते रहे, तब जाके अनुष्का सेन ने इस कैरेक्टर को थोड़ा बहुत पकड़ा था. पर तेरे लिए इमीडिएटली एक दिन में 2 दिन में करना मुश्किल रहेगा. टेक योर टाइम, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. एंड व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग देयर, सो शी आल्सो रिस्पोंडेड वेरी वेल. एंड आई नोटिस कि द वेरी नेक्स्ट डे शी कॉट द कैरेक्टर वेरी वेल. तो 2 दिन के अंदर उसने कैरेक्टर पकड़ के अपनी सीन्स को बहुत अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से करने लगी. तो वहां से हम लोग रोज बातें करते थे. तो फिर उसके बाद कब फ्रेंडशिप हो गई, कब बातें हम लोग की लंबी लंबी कॉन्वर्सेशन में बह गई. फिर उसके बाद जब सीन्स करते थे तो और मजा आता था, तो और उन चीजों के बारे में बात करते थे हम लोग. तो आई थिंक इट जस्ट एंडेड अप बीइंग देयर. दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड दैट्स हाउ इट कंटिन्यूड. दिस इज माय And cat that's putting the phone away. oh, You know, okay. yeah, that's Yeah, all. she's so हाँ. cute. Zoe, say hi. हाँ. ओके ओके फैमस, आपने इतना आपने स्टार के शो में काम किया, सोनी के शो में काम किया, जी पर काम किया. आई थिंक कलर्स छूट गया है अब, है ना? कलर्स भी किया है. सो कलर्स भी किया है मैंने. अच्छा अच्छा. हाँ, कलर्स भी किया है मैंने. कलर्स में ओके इश्क में सो मरजावा किया था. इश्क में मरजावा कलर्स पे आता ना शायद. यस यस. हाँ, तो इश्क में मरजावा में काम किया था मैंने. ओके सो आगे क्या है बकेट लिस्ट में? लाइक आप वेब भी कर चुके हो, देन जी म्यूजिक वीडियो भी किया. जी. आगे क्या है बकेट लिस्ट में? क्या और एक्सप्लोर करना चाहते हो आप? देखिए, अगर आपने देखा है तो मैंने हर एक शो में एक अलग कैरेक्टर प्ले किया है. You can say I've been blessed, I've been fortunate enough to get those different characters, क्योंकि मेरे टीवी में स्पेशली initially where I am the position that I am in, you don't get to choose, है ना. You try and catch on to whatever you get initially. I've been lucky enough that I've gotten different characters over the years. मेरा इससे पहले जो कैरेक्टर था, जो रणदीप मेहंदी दत्ता का कैरेक्टर था मेरे डैड की दुल्हन में, इससे completely opposite character that I played in अपना टाइम भी आएगा. I am just looking for something that is different. Honestly, I want. लोग बहुत कहते हैं ये चीज, and you should understand why they say it also. The fact that I want to do something different from Veer now. You know, मैंने मैनेजर से भी बात की है कि वीर के कैरेक्टरिस्टिक्स छोड़ के कोई और कैरेक्टर दीजिए मुझे, ताकि मुझे भी फील हो कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ. अब वापस वही कैरेक्टर प्ले करने लगूंगा या उसके आसपास वाला कैरेक्टर प्ले करने लगूंगा, तो फिर वापस मुझे भी मजा नहीं आएगा करने में. तो I'm looking for something that's different. I'm not going to be very choosy about what platform I'm going to work on. कोई भी प्लेटफॉर्म हो, टीवी हो, टेलीविजन हो, या अपना ओटीटी हो, कोई भी मूवीज का प्लेटफॉर्म हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, it doesn't make a difference as long as you're enjoying the work. And yes, एंड हाउ टीवी अबाउट, does get it. हाँ, no no बोलिए. प्लीज गो अहेड. हाँ, तो गो टीवी does आप. get a little hectic. टीवी does get a little hectic. बट काम करने ही तो आए हैं यार. फिर ना करें और घर पे बैठने का क्या मतलब है. अपने आप थोड़ा टाइम मिल जाएगा, उसमें चिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद. बट ये है कि कुछ अलग करें, कुछ अलग करने का इरादा है, कुछ अलग कैरेक्टर प्ले करने का इरादा, कोई अलग कैरेक्टर हो. देखते हैं. आई डोंट प्लान स्टफ. आई डोंट लाइक टू प्लान. आई थिंक व्हाटएवर हैपेंस विल हैपन. You just have to work hard in whatever you get. एंड व्हाट अबाउट रियलिटी शोज? I'm a very adventurous person. Something on the terms of खतरों के खिलाड़ी हो, या Fear Factor kind of things. I think I don't mind getting into that also. And Big Boss का पता नहीं, मुझे सोचा नहीं है इसके बारे में कभी. अगर ऑफर हो तो maybe I'll do it. Maybe why not? कोई हर्जी नहीं है उसमें ना, कर सकते हैं. जैसे कि हाँ. आपने कहा कि आप बिग बॉस अगर कभी ऑफर हुआ फ्यूचर में तो आप करेंगे, तो बिग बॉस देख रहे हैं आप इस बार का?
मैं सच बताऊं तो नहीं, क्योंकि मैं राइट नाउ आई एम जस्ट चिलिंग यार. आई एम वॉचिंग shows that I want to watch. I'm watching lot of English content, Spanish content. तो एक अलग जरिया मिलता है चीजों के लिए. बिग बॉस में क्या है, वो स्पेस नहीं है अभी मेरा, कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट. मैं बिग बॉस वैसे भी ज्यादा नहीं देखता. मुझे कभी कभी जब सलमान खान स्क्रीन पे आता है तब मजा आता है देखने में. अदर देन दैट या आई वॉच्ड व्हेन वो क्या नाम था उस बंदे का यार, जो सलमान सिद्दीकी नहीं, सिद्दीकी जब था ना, वो बंदा है बहुत. इमाम सिद्दीकी. इमाम इमाम सिद्दीकी, सिद्दीकी. इमाम सिद्दीकी मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगता था. ओके सो फैमान, आप शो का फॉर्मेट जानते ही हैं बिग बॉस के, लाइक मतलब वहाँ पे फाइट्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है, तो वहां पे आपको लगता है आप सरवाइव कर पाओगे? लाइक आप हो वैसे आउटगोइंग काइंड ऑफ जो किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर ले, कुछ भी कर ले? देखिए, जहां तक मैंने सोचा समझा है इस शो को, इट डजंट हैव टू, देखो ये यू हैव टू बी योरसेल्फ देयर, राइट. लड़ाई झगड़े तो हर कहाँ नहीं होते, हर किसी के रिलेशनशिप में, दोस्ती में. बट आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू हैंडल अ सिचुएशन. पब्लिक, जरूर पब्लिक को मजा उन लोगों, वो मसाला मिलता है तो मजा आता है. लेकिन अगर आप देखो तो जीतता वही है जो बहुत काम रहता है. who has handled a situation very well is the person who wins generally. अगर बीच में कभी गुस्सा आ जाए तो भड़कने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. और मैं जहाँ से हूँ, हम लोग ने बहुत लड़ाई झगड़े की हैं लाइफ में अपने. तो वो करने से पीछे नहीं हटते. लेकिन उसको जहां तक प्रोलॉन्ग कर सको वहां तक तो मैं करने का मुझे सिखाया गया है, मैं सीखा हूँ. पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अभी मैं हंसी मजाक में सब कुछ उड़ा देता हूँ. और सामने वाले को मैं शायद ह्यूमर में ऐसी चीजें बोल जाता हूँ तो उसको समझ भी नहीं आए. फिर जब समझ में आया तो बहुत देर हो चुकी होती है. तो आई डोंट थिंक इट्स नीडेड टिल यू हैव टू डू इट. एंड इफ यू हैव टू डू इट, देन देयर इज नथिंग स्टॉपिंग मी डूइंग इट. ओके सो आने वाले फ्यूचर में शायद हम आपको भी देख सकते हैं बिग बॉस के घर में. मे बी नॉट, मुझे नहीं पता. मैं, जैसे मैंने कहा, मैं प्लानिंग नहीं करता. तो जो हो सके, जो होगा उस वक्त, जो मेरा मन कहेगा, जो मेरा दिल कहेगा, मैं वही करूंगा. ओके, फैंस को कुछ होपफुल मैसेज देना चाहेंगे कि जल्द ही वो आपको स्क्रीन पर वापस से देखे, वेदर इट्स टीवी और वेब और समवेयर एल्स? कई बार बोल चुका हूं मैं उनको शायद मैसेज पहुंच भी चुका है, पर आपके जरिए भी बोल देता हूं कि देखिए, हम यही हैं. फरमान, आप कहीं नहीं जाने वाला है. इस इंडस्ट्री को मैं बिलोंग करता हूं और यहीं से रहूंगा, यहीं रहूंगा. मेरी जिंदगी यहीं है, मेरी मौत भी यहीं होने वाली है, इतना तो मुझे पता है. स्क्रीन पे मैं आता रहूंगा. जो जो मुझसे हो सके मैं बेस्ट देता रहूंगा. आई विल ऑलवेज ट्राई एंड एंटरटेन यू. आई विल कीप working hard and believing in myself. I just expect you to believe in me also. And I love you all. जो भी है, आप लोग हैं तो हम लोग हैं. And you all have given us so much love and so much appreciation and so much joy to be part of our lives. And thank you so much. और ऐसे ही डटे रहिएगा, हम भी डटे ही रहेंगे. जिंदगी साथ काटेंगे, डोंट वरी. थैंक यू सो मच फरमान फॉर टॉकिंग टू अस, एंड होपफुली जल्दी कैच अप हो हमारा, वापस से जल्दी मिले. बिल्कुल 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 अनु. टेक केयर. थैंक यू सो मच. टेक केयर. थैंक यू सो मच. बाय बाय. बाय बाय. बाय बाय. Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.